Hello kids, today we are going to revise the lesson similarities and differences. Okay, already you solved the worksheet on body parts. I gave you worksheets on this lesson. Today I am going to give a worksheets on similarities and differences lesson. All of you know similarity means what? Yes, similarity is a likeness or resemblance, and differences is the quality of a being unlike or different. We all have the same body parts. 2 eyes, 2 hands, 2 legs, 1 nose, 1 mouth. But we are different in weight, height, complexion, hair, eye color, nose shape. We have body parts same but different in height, weight, complexion. Complexion is the color or look of a person's skin. Complexion is हम उसे कलर बोलते हैं. एक गोरा है, एक काला है. दैट इज द कलर एंड लुक ऑफ द पर्सन स्किन का. टाइप्स ऑफ हेयर. In hair, bushy hair, thin hair, straight hair and curly hairs are there. Eyes. Some people have black eyes, brown eyes and grey eyes. Some people have nose, sharp nose, pointed nose and flat nose. All peoples are not having the same type of nose, same type of eyes. Someone's eyes are big, someone's eyes are small eyes. Someone are having a sharp pointed nose, someone are having a flat nose. Understood, no kids? And again one thing is their age difference. Some people are old age, some people are young age, some people are teen age, some people are below the teen age, मतलब up to 10 years old, and some are babies. कुछ लोग अभी बेबी रहते हैं, बच्चे छोटे से बेबीज रहते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद टीन एज में आते हैं, उसके बाद यंग हो जाते हैं, यंग से बाद ओल्ड हो जाते हैं. एज डिफरेंस ऑल्सो इज देयर. ओके, सी ऑन दिस लेसन. On which one lesson? Similarities and differences. I make a one worksheet and I am going to give you this one to solve. Similarities and differences lesson के ऊपर मैंने एक छोटा सा वर्कशीट बनाया है और मैं आपको शेयर करूँगी दिस वन वर्कशीट. You, if you want, you take a xerox of it. Otherwise, you write it in your home by using the colorful pencil and solve it. आपको चाहिए तो आप xerox लीजिए, नहीं है तो आपको लिखना है तो जस्ट हाउ आई एम रिटन नो, मैंने कैसे लिखा है वैसे आप अपने घर में इस वर्कशीट को लिखकर सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो सी हियर, fill in the blanks. First question is fill in the blanks. 1. Complexion is the dash and dash of a person's skin. What we revised now?
जस्ट हमने अभी रिवाइज किया है, कॉम्प्लेक्सियन इज द color and look of person's skin. So we'll write here color. Okay, I will write here faint because I am going to give you to Xerox no color and look. Some people are young and some people are old. हर लोग, सभी लोग सेम एज के नहीं रहते. सम आर यंग एंड सम आर ओल्ड. पीपल लुक डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज. हर लोग उनके एज के थ्रू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर एज दे आर लुक डिफरेंट. See here, only see in this picture. The baby looks different. The old man looks different. Young man look different. The small boy look different. The people look different according to their dash given. I am written here age. Next, the shape of the nose of every person is dash dash different. The shape of the nose of every person is different. 5. Similarity is dash and dash. Similarity is resemblance and likeness. Okay. So, next see. Name the following. Complexion, types of hair, shapes of nose, color of eyes. नेम इट. कॉम्प्लेक्सियन में कौन कौन से कलर्स रहते हैं? फेयर एंड डार्क. इन कॉम्प्लेक्सियन 2 टाइप्स आर देयर, फेयर एंड डार्क. कोई गोरा रहता है, कोई काला रहता है. टाइप्स ऑफ हेयर में कर्ली हेयर, थिन हेयर, बुशी हेयर. टाइप्स ऑफ हेयर में कर्ली हेयर, थिन हेयर एंड बुशी हेयर. नेक्स्ट वन सी. शेप ऑफ नोज. नोज के शेप लिखिए. यू नो आपको पता है, अभी जस्ट हमने रिवाइज किया है. नोज के शेप में पॉइंटेड नोज होता है, फ्लैट नोज एंड शार्प नोज. 3 टाइप्स ऑफ नोज आर देयर. शेप ऑफ द नोज आर 3 टाइप्स, पॉइंटेड, फ्लैट एंड शार्प. Next, color of eyes. So, kids, see the next question. Make or write. Write a note on 3 similarities and differences between you and your parents. Means, एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप किस में, मतलब नोज़ में आपके मम्मी पापा जैसे हो, या आपका आइज़ आपके पेरेंट्स जैसे है, या आपका कलर, स्किन कलर आपके पेरेंट्स जैसा है. एंड डिफरेंसेस मतलब आपका बाल और आपका मम्मी का बाल अलग है, आपका नोज़ और आपका पापा का नोज़ इट्स वेरी डिफरेंट, आपका स्किन कलर और आपका पेरेंट्स का स्किन कलर अलग है. इट इज़ पॉसिबल, होता है, सेम भी होता है और अलग भी होता है. ऐसा नहीं कि दोनों का सेम, आपका नोज़ आपका पेरेंट्स का नोज़ सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए. नो, समटाइम्स इट विल सेम, मतलब किसी किसी का सेम रहता है और किसी का अलग भी रहता है. अंडरस्टूड नाउ? सो सी हियर आई एम रिटर्न similarities along with parents and differences. कौन सा क्या क्या similarities है? See here kids, my complexion, मेरा
स्किन का कलर मेरे मम्मी जैसा है। मैं मेरे मम्मी जैसी गोरी हूँ। यू ऑल्सो राइट। आप अपने मम्मी जैसे गोरे हो तो पापा जैसे गोरे हो। किसके जैसा आपका स्किन कलर है? इफ इट इज़ नॉट देयर देन डोंट राइट, डैश इट। नहीं है तो सेम नहीं है तो डैश बोलो। ओके, सेकेंड वन, आईज, सिमिलैरिटी इन आई। माई आईज आर सेम टू माई पापा। मेरे आईज मेरे पापा जैसे है। बिग बिग आईज आर दे, मेरे पापा के आईज बिग है, इसीलिए मेरे भी आईज बिग है। हियर आई एम रिटर्न टू सिमिलैरिटीज विथ ऑफ मी विथ माई पेरेंट्स। कलर में और आईज में मैं मेरे पेरेंट्स जैसे हूँ। एंड डिफरेंसेस, नोज, मेरा नोज मेरे मम्मी एंड पापा जैसा नहीं है। माई नोज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट माई पेरेंट्स नोज। मेरे पापा जैसा भी मेरा नोज नहीं है और मेरे मम्मी जैसा भी मेरा नोज नहीं है। इट्स अ डिफरेंट इज देयर। ओके, नाउ हेयर also different. My hair also different. मेरे मम्मी पापा जैसे मेरे हेयर नहीं है, पापा जैसे भी हेयर नहीं है और मम्मी जैसे भी मेरे हेयर्स नहीं है। दे आर ऑल्सो डिफरेंट। नाउ लास्ट वन इज एज। एज डिफरेंस इज देयर। आई एम वेरी स्मॉल एंड माई पेरेंट्स आर यंग वन। मेरा एज स्मॉल है और मेरे मम्मी पापा का एज थोड़ा सा बड़ा है मेरे से भी। थोड़ा मतलब दे हैव यंग, दे आर यंग, आई एम चाइल्ड। मैं भी 7 years का हूँ और मेरे मम्मी पापा अबो 30 years के हैं। एज डिफरेंस इज देयर। अंडरस्टूड? मैंने कैसे लिखा है बच्चों? आप भी अपना एक लिस्ट बनाओ जहाँ पर आपका और आपके पेरेंट्स के सिमिलरिटीज क्या क्या है। नहीं है तो डैश डालो। इफ इट इज नॉट देयर, डैश इट। सी हियर आई एम रिटन कॉम्प्लेक्सियन एंड आईज आर सेम। मैं मेरे मम्मी जैसे, मेरा कलर मेरा मम्मी जैसा है, आईज मेरे पापा जैसे है। नोज इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ देम। उनके दोनों जैसे ही मेरा नोज नहीं, अलग ही है। हेयर ऑल्सो डिफरेंट, एज ऑल्सो डिफरेंट इज देयर। अंडरस्टूड my kids how to write it? Okay, I will erase it. Whatever I am written answer, no, I will erase it. And I will save this one page with you. Okay? You solve it. You write it your own answers. When you will read the lesson, no, you will get this all fill in the blanks. जब आप लेसन रीड करोगे तो fill in the blanks आपको मिल जाएंगे. Right? Name the following also you will get. It is your own. Okay? Thank you for watching the video.